Good morning, everybody. We will start our lecture after 2 minutes so that everybody can join. Okay. So hello, good morning, everybody. Uh, I think majority of you are in this lecture. Okay. So in the previous lecture, what we have discussed, Rashid Chawda. हाँ सर. Yes, tell me what we have discussed.
સર 2 મિનિટ હો, મેં લખેલું છે, હું ઈ લઈ લઉં. હા, ઓકે ઓકે ફાઇન. Anuj Kachoria. What is your answer? What we have learned in the previous lecture? સર હા અનુજ બોલો. સર 2 મિનિટ હો. 2 મિનિટ તો બધા 2 મિનિટ લેશે તો આપણે લેક્ચર ક્યારે પૂરો થશે? સર ચેન સર્વાઈંગ. હા, ચેન સર્વેમાં શું કર્યું હતું? ટોપિક બોલી જાઓ. ટોપિક. હા સર. સર એક તો આપણે ઓલું આર્ટ ઓફ બેલીમેટ્રો કર્યું હતું. પછી એની આપણે ઓલી ફિગર ડ્રો કરાવી હતી તમે. ઓકે. પછી યુઝ ઓફ બેલીમીટર કરાવ્યા હતા. ઓકે. આ સિવાય પ્રસિદ્ધ ચાવડા તમારું શું કેવું છે? એડ ફ્યુ મોર. સર ઈ છે ને તમે પ્લેનીમીટર કીધું હતું, પછી એમાં જે ઓલા જે એક એક સ્ટેપ છે એના છે ને ઈ સમજાવ્યા હતા, ડ્રો કરવા આપ્યું હતું, અને એ આ સરખું છે ને આમ ડ્રો થતું નહોતું, એટલે પછી ઓકે ઓકે ફાઇન. ધેન આનંદ જોશી. યસ સર. હા, તમારું શું કેવું છે? સર આપણે એક ઓલું સમ નું કર્યું હતું, એ આપણે પ્લાનમાં આપણે સમ ફાઇન્ડ કર્યો, ખબર આપણે આપ્યું હતું તમે. બરોબર એ હતું એક. બરોબર. અને છેલ્લે ખુશી છે હાજર? યસ સર. યસ ટેલ મી. સર આપણે ચેઇન ટાઈપ્સ કર્યા હતા, કઈ કઈ આવે? એન્જિનિયર્સ ચેઇન, પછી ગન્ટર ચેઇન, પછી ટેપમાં કયા કયા ટાઈપ્સ આવે, પછી સ્ટેશન કયા આવે તો કે મેઇન અને સબ સ્ટેશન, પછી લાઇન્સ તો કે બેઝ લાઇન ને ચેક લાઇન, પછી ઓકે ઓફસેટ તો કે પરપેન્ડિક્યુલર અને ઓબ્લિક, એ કર્યું હતું. Okay, very nice. So, yes, we have one practical lab session for a planimeter, and before that, we are discussing about the chain survey. So right now, I am sharing a screen with you. Okay. So what we have discussed in the previous lecture, I am recalling and reminding you in very brief manner. Okay, so that you can identify the exact relationship between our previous lab and previous lecture and this lecture. Okay, so I'm sharing a screen with you right now. I hope it is visible to you right now. No, sir. And yes, sir. Yes, sir. So okay, so what we have done in the previous lecture, you can see on your screen right now that we have calculated that area of this irregular figure by using the planimeter. Okay, so that is the case. So on your screen right now, you are seeing that irregular figure area. Where did it come from? We have performed a practical like chain survey. You can see I'm recalling you so that it is connected with today's lecture is also connected with the previous one. Okay. So this is your ground, you can say. Okay, actual ground. We are doing these things. We need to mark the station point A, main station point B. Then we will take the offset, that is the distance, a perpendicular distance from our baseline, that is your chain line or a center line. Okay. So for example, I have given one example that this is if 3D, if this picture is your 3D image of the real which show the ground reality. So here you can see we have marked a point over here. Okay, so I have marked a point over here, then B point is here, you can see, okay, with the triangle.
And when we see it from the plan, you can see like this. Okay, so A, B, and finally by connecting all the edge points, you can get the area. Likewise, okay, so here D1, D2, D3 is your distances with reference to the AB line. Okay, so if we want to find out the area of this image, we have an instrument called the planimeter. That's why we have taken that planimeter in between in the lab session. Okay, so now you are knowing the how we can calculate the area of this irregular shape figure. Okay, I hope that you are getting that also. And in today's lecture, we are going to discuss the ranging of the survey. You can see that on your screen right now, it is visible. So ranging of the survey, ranging is nothing but our ranging rod and the observer should be in a straight line. So what is the definition of the ranging on your screen? You can see to align the intermediate points on the chain line so that we can measure the distance along the chain line. So that is the procedure of the ranging, and process of locating intermediate points on the survey line is called the ranging. That means if this is my A point, okay, if this is my A point and this is my B point, this is my B point and this is my A point. So this is your chain line, you can say, okay. And now I want to mark the point C and D in between AB line. Okay. So what is the procedure for that? We need to apply the ranging procedure. Okay. So that A, C, D, B in a straight line. So we have two methods of ranging. One is the direct ranging method. That means you can easily see that C point and D point, okay, and bring it in the straight line. And reciprocal ranging, indirect ranging. So that we will see. Okay. So write down the first thing. We have two types of the ranging. Number one is the direct ranging, and second is the reciprocal or indirect. Reciprocal is nothing but that is your indirect ranging. So you need to understand and remember that word, reciprocal. Okay. So now I have one boy over here, you can see on your screen, and he is standing at A point. Okay. So what do you mean by ranging? So what do you mean by ranging? Simply, if I want to mark C point over here, so this man will guide the man at the C point over here to come at this point. Okay, likewise, this is the ranging procedure. So ranging is applicable for the small distance and station are visible. Okay, so this is the direct ranging, you can say. So this is the direction of the survey, and this man is considered as a observer. Okay, observer. Okay, so that is the point. What we can say simply that you can take a screenshot of this and so what is the direct ranging? You can say ranging when the station is visible to you. When the station are visible to you, so this observer will guide the man at C, which has a ranging rod, to move right or left, you can say. Okay. तो अगर हमें इस C वाले रेंजिंग रोड को A और B के बीच में रखना हो ताकि हमें यह मिले कि A पॉइंट, C पॉइंट और B पॉइंट वो एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो ऑब्जर्वर है वो सी पॉइंट वाले बंदे को गाइड करेगा कि आपको भैया लेफ्ट हैंड साइड तरफ थोड़ा चलिए ताकि हम ए सी बी को स्ट्रेट टाइम में देख सके, ठीक है. सो दैट इज द रेंजिंग प्रोसीजर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द indirect ranging, that means stations are not visible to you due to some obstructions, and let us consider one example so that you can get an idea. Suppose your A point is here,
Okay, so this is the 3D image, and your B point is here. In between, there is some building. So how you can do a ranging? Okay, so that is your indirect ranging. For that, we need to go for that figure. This is understanding. So in our first case, you can see that between A and B, nothing is there, only a ranging road. So that is your direct ranging, because you can easily direct domain at C to reach at a particular point, so that A ranging road, B ranging road, and C ranging road comes into the straight line. ठीक है? इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है कि स्टेशन हमें दिख नहीं रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्डिंग्स है, 3D कोई भी स्ट्रक्चर आ गया तो आपको दिख नहीं रहा है ए पॉइंट और बी पॉइंट. ठीक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे बी वाला जो बंदा यहाँ पे खड़ा है वो ए को देखने की कोशिश करेगा तो नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे है बिल्डिंग. ठीक है, इट इज नॉट. सिमिलरली ए वाला बंदा जो है यहाँ से देखने की ट्राई करेगा तो वो भी नहीं देख पाए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे है बिल्डिंग. सो ऐसे केस में हम रेंजिंग कैसे कर सकते हैं, आइए वो हम देख लेते हैं. राइट, सो हमें अब जो है आपको सभी को क्या करना है कि एक जो है आपको अपना वीडियो ऑन करना है अभी. राइट, और सबसे पहले आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूं. ठीक है, एग्जैक्टली क्या हमें सीखना है. अब जो ये वाला जो है इमेज, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, और मैं आपको जैसे जैसे बताता जाऊँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है. राइट, तो हमारे पास 2 पॉइंट है. यहाँ पे ए पॉइंट पे रेंजिंग रोड लगाया है, बी पॉइंट पे रेंजिंग रोड है, लेकिन ये एलिवेशन है तो हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट दिख नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सा स्लोप है. राइट, तो ये वाला जो यहाँ पे बंदा खड़ा है, ठीक है, तो ये यहाँ से देखेगा तो उसको दिख नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे है हाइट है थोड़ी. ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट. एट द पॉइंट ए सेम काइंड ऑफ थिंग आर देयर. द मैन ओवर हियर कैन नॉट सी द बी पॉइंट. सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग. तो अब में जो है आप अपनी स्क्रीन ऑन कीजिए. ये इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ. ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब मैं क्या आपको दिखाता हूँ. अपनी स्क्रीन ऑन कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, इट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज फेस टू फेस जो है अभी आएंगे तभी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो राइट नाउ आई एम स्क्रीनिंग ऑन माय वीडियो. यू कैन सी. okay, everybody just turn on your video so that we can easily understand. Right, I hope that I am also visible to you. Everybody just turn on your screen. Okay, I am also visible to you. Hope that. Yes, sir. Okay, fine. Okay, fine. So what I am trying to convey you is how indirect ranging is performed. Okay, or how we can remember easily. So that is the my point. And okay, so majority are there. दीपक चौधरी, आपने स्क्रीन ऑन नहीं किया. हाँ हाँ, आपको स्क्रीन ऑन करना है वीडियो वाला ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, अब जो है आपको मैं इजिएस्ट वे में समझाता हूँ कि किस तरह से आपको इनडायरेक्ट रेंजिंग याद करना है. पॉइंट क्या है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है ए वाला पॉइंट वो हमें दिख नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि बीच में जो है एक बिल्डिंग है. राइट, ओके, तब आप, ये आईपीएल का सीजन चल रहा है. ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि आप, ये आपने सुना होगा, ये क्या है? DRS. यस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम. इज इट ओके फॉर यू? ये आपका क्या है कि मैंने अगर ऐसा ऐसा कर दिया तो वो क्या होगा? रिव्यू के लिए चला जाएगा. है, तो वो हम क्या करते हैं? इनडायरेक्टली कहाँ जाते हैं? थर्ड अंपायर के पास. तो क्या है कि वो जो रिव्यू वाला उसको मालूम नहीं है कि ये सीधा रखना है. उसने क्या कर दिया? ऐसा कर दिया. समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है? आपको कैसे याद रखना है? रिव्यू ऐसे होता है. ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? ऐसा टेढ़ा कर देना है क्योंकि बैट्समैन थोड़ा टेढ़ा है. ठीक है, मेजोरिटी आपको ये समझ में आ गया होगा. तो अब जो इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने इनडायरेक्ट रेंजिंग के साथ. ठीक है, आपको ये याद रखना है. क्या याद रखना है? ये वाला जो फिगर मैंने बनाया वो आपको याद रखना है. अब अपनी स्क्रीन पे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो आप देखिए.
अब देखिए, तो वहां पे क्या है कि मेरी जो एल्बो है यहाँ पे, वहां पे ए पॉइंट है, देख सकते हैं, और मेरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है यहाँ पे वो है एक्स पॉइंट। ओके, और यहाँ पे जो है एट द एंड, दैट इज माय वाई पॉइंट। समझ में आया? तो आपको इस तरह से फिगर याद रखनी है। कैसे? कि मेरे एल्बो जहां पे है बॉटम पे, दैट इज माय ए पॉइंट। इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा है बीच में, दैट इज माय एक्स पॉइंट। एंड एट द लास्ट दिस पॉइंट इज कॉल्ड वाई पॉइंट। इन योर फिगर यू कैन से सिंपली, एक बार हम ऐसा करेंगे, और नवरात्रि भी आने वाली है, तो एक बार ऐसा करेंगे, राइट? एक बार ऐसे करेंगे और एक बार ऐसे करेंगे। तो आप देखिए, आप अपनी इमेज आप देखिए। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। आपको 2 ही स्टेप याद रखने हैं, राइट? क्या करना है? एक रिव्यू करना है, लेकिन टेढ़ा। तो हो गया ऐसा। फिर नवरात्रि का माहौल है, तो आप इस तरह से एक बार कर दीजिए और एक बार इस तरह से कर दीजिए, राइट? सो अब जो है आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, और अपनी स्क्रीन मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ठीक है? तो वो देखना है। ये समझ में आ गया आपको क्या करना है, राइट? अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, और yes, now you can easily understand this figure. आपको क्या करना है? मैंने जैसे बताया था, ये हमने क्या कर दिया, रिव्यू जो है वो थोड़ा टेढ़ा कर दिया। तो वो क्या बन जाएगा, ये मेरी एल्बो थी यहाँ पे ए पॉइंट पे, ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट था, यहाँ पे मेरा हाथ था इस तरह से, ठीक है? ऐसा मैंने बना दिया, राइट? और इस तरह से भी मेरा एक, ऐसा आप समझ लीजिए कुछ है, ड्राइंग थोड़ी वीक है तो आप समझ लीजिए। तो मैंने क्या बताया कि आपका ए पॉइंट मेरे एल्बो के पास था, मेरा जहां पे हाथ इंटरसेक्ट हो रहा था, दैट इज माय एक्स पॉइंट, एंड वाई इज द पॉइंट एट द एंडिंग पॉइंट। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूं कैसे याद रखेंगे। कि हमारे पास टोटल 4 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 4। तो 4 बंदे का काम क्या है कि मैंने आपको बोल दिया कि एक बंदा ए पॉइंट पे खड़ा रहेगा, दूसरा जो है वो बी पॉइंट पे खड़ा रहेगा, और तीसरा एक्स पॉइंट पे, और चौथा जो है वाई पॉइंट पे खड़ा रहेगा। तो अब प्रोसीजर क्या है कि मान लीजिए ए पॉइंट वाला जो बंदा है, हम एग्जांपल ले ही लेते हैं, ठीक है? ए बी एक्स एंड वाई, तो एक ही जगह हम रख लेते हैं। किसको रख लेते हैं? हम प्रसिद्ध चावड़ा को रख लेते हैं। प्रसिद्ध, अरे हाँ लिस्निंग? सर। हाँ, आप ए पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया प्रसिद्ध, ठीक है? ओके सर। फिर बी पॉइंट पे कौन खड़ा रहेगा? आनंद जोशी। बी पॉइंट पे रहेगा आनंद जोशी, राइट? अब एक्स पॉइंट पे कौन खड़ा रहेगा? ये दीपक कुमार चौधरी। आ रहा है आवाज? दीपक कुमार चौधरी, ठीक है? और लास्ट में जो है एक और बंदा चाहिए, जो है मनन सर, मनन। हाँ, मनन ने ले लो। चलो भाई, हाँ चलो, मनन खड़ो રહેશે। હા, સોરી, અહીંયા તો ભાઈ કઈક ઊંધું થઈ ગયું। એમ અહીંયા આવશે, બરોબર? તો તમારે 4 વ્યક્તિ આપણી પાસે છે। ફર્સ્ટ વન ઇઝ વી હેવ અ પ્રસિદ્ધ સ્ટેન્ડિંગ એટ એ પોઈન્ટ. એટ ધ બી પોઈન્ટ વી હેવ આનંદ સ્ટેન્ડિંગ એટ બી પોઈન્ટ. At the x1 location we have a Deepak Kumar Chaudhary, and at the y1 point we have a Manan. तो अब प्रसिद्ध क्या करेगा? प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्ध और मनन जो है वो एक लाइन में खड़े ही है, क्योंकि 2 पॉइंट हमेशा एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है? ठीक है, ये हम प्लान में सीख रहे हैं, ठीक है? प्लान में सीख रहे हैं। तो ये जो ऊपर से आप देखते हो, तो प्रसिद्ध यहाँ पे खड़ा है, तो प्रसिद्ध क्या करेगा? दीपक कुमार को बोलेगा कि भैया चल के x1 पोजीशन पे आओ, ताकि प्रसिद्ध, दीपक एंड मनन तीनों एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे अब प्रसिद्ध का काम खत्म हुआ। अब प्रसिद्ध क्या करेगा? दीपक अब साइलेंट हो जाएगा, और अब आनंद की बारी। एक बार प्रसिद्ध गाइड करेगा, दूसरी बार आनंद गाइड करेगा। तो अब आनंद करेगा। आनंद क्या कहेगा? आनंद और दीपक एक लाइन में आ गए, आप देख सकते हैं x1 एंड b इज इन द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं। अब वो आनंद मनन को गाइड करेगा कि आप y2 पोजीशन पे आ जाओ,
ताकि आनंद, मनन और दीपक एक लाइन में आ जाए, राइट। तो मनन M1 पोजीशन से कहाँ आ गया, M2 पोजीशन पे, राइट, और दीपक D1 पोजीशन पे है। तब आपको याद क्या रखना है कि हमें स्ट्रेट लाइन बनाती जानी चाहिए, ताकि हमें AX1, AX, Y एंड B दिख सके दोनों ओर से, ठीक है। अब प्रसिद्ध की बारी। प्रसिद्ध क्या करेगा, अब दीपक को बोलेगा कि आप D1 पॉइंट से D2 पोजीशन पे आ जाओ, ताकि आप मनन, प्रसिद्ध, दीपक और मनन एक लाइन में आ जाए। वापस से अब आनंद की बारी। आनंद क्या करेगा कि आनंद जो है वो मनन को गाइड करेगा। मनन, आप M2 से M3 पॉइंट पे आ जाइए, ताकि आनंद, मनन और दीपक एक लाइन में आ जाए। अब प्रसिद्ध की बारी। प्रसिद्ध क्या करेगा, प्रसिद्ध जो है दीपक को गाइड करेगा कि भाई दीपक आप D2 की जगह आप D3 पे आ जाइए, ताकि प्रसिद्ध, दीपक एंड मनन एक लाइन में आ जाए। ऐसे आप चलते जाओगे तब आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जो प्रसिद्ध जो यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़ा है वो मनन को देख पाएगा, ठीक है, और आनंद जो है वो दीपक को देख पाएगा। इस तरह से क्रॉस हो जाएगा। अब आई बात समझ में। तो हमने एक पहली बार क्या किया कि पहला डिसीजन रिव्यू जो है वो हमारा स्ट्रेट कर दिया, उसके बाद रिवर्स, वंस अगेन स्ट्रेट, वंस अगेन रिवर्स। सो दैट इज द प्रोसीजर। आपको समझ में आया बात? समझ में आया बात, ये किस तरह से करना है इनडायरेक्ट रेंजिंग? ठीक है, अब हम थोड़ा ब्रीफिंग ले लेते हैं। कृपाल सिंह झाला। कृपाल, ओके, अवाज नहीं पहुंचतो। उमेश कुमार, यस सर। आप समझा सकते हैं कि इनडायरेक्ट रेंजिंग किस तरह से होती है? यस सर। हाँ बताइए, आपके सामने स्क्रीन सारा जो है, मैं इसको क्लियर कर दूं? ठीक है सर। अब जो है मैं एग्जाम में पूछूं सपोज कि एक्सप्लेन रेसिप्रोकल रेंजिंग इन डिटेल, ठीक है, तो Yes. अब जो ये उमेश बोल रहा है अभी वो आपको लिखना है, राइट। आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखना है। आपके माइंड में जो है एक्स वाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स ही लेना, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। आप समझाइए अभी उमेश। मैं यहाँ पे मार्कर लगाता जाऊंगा साथ में ताकि आपको आसानी रहे। यस, ये ए और बी, ये एक ए और बी से वाई तक की इंक्लाइन एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं, बी पॉइंट नहीं दिखेगा, इसलिए वाई पॉइंट हम इसलिए लेंगे क्योंकि बी हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम वाई पॉइंट लेंगे। तो बी हमें पॉइंट नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल रेंजिंग यूज करेंगे यार, इनडायरेक्ट रेंजिंग यूज करेंगे। ओके यस। ओके, अब क्या करेंगे आप? फिर बी पॉइंट से हम रेसिप्रोकल लाइन खींचेंगे इस साइड एक्स की तरफ, क्योंकि ए बी से हमें ए नहीं दिख रहा है। बी से हमें ए नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ए से y1 और बी से x, राइट। यस सर। आप बताते जाइए आगे। फिर ए से हम y2 लेंगे, ये ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहेगा सर। फिर जाकर के लास्ट में हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जैसे कि जो हमें एक बी को हम देख सकते हैं और ए को देख सकते हैं। Okay, fine. Okay, fine. Who wants to try to explain this procedure in a point-wise manner? Anybody? Simply mention yes, so we can add on. સર Who wants to? Yes. સર નથી સમજાતું. Okay. Anybody else? સિમ્પલ પ્રોસિજર છે. તમે જુઓ, આપણને એ પોઈન્ટ થી બી પોઈન્ટ નથી દેખાતો અને બી પોઈન્ટ થી જે છે એ પોઈન્ટ નથી દેખાતો. તો આપણે એ પોઈન્ટ ઉપર જે વ્યક્તિ છે, બરોબર, એ વાય પોઈન્ટ ને જોઈ શકે અને વાય એને ગાઈડ કરી શકે કે નહીં? ધારો કે એ પોઈન્ટ આગળ એક વ્યક્તિ છે અને બી પોઈન્ટ આગળ એક વ્યક્તિ છે, બરોબર. ટૂંકમાં આપણે કમ્યુનિકેશન ચેન લાઈન બનાવવાની છે. ઓકે, કેવી રીતે? જેથી કરીને અત્યારે એ અને બી નથી જોઈ શકતા, બરોબર. તો એ વ્યક્તિ જે છે એ વાય સ્ટેશન એવું સિલેક્ટ કરે જે એ અને બી ને બંનેને વિઝિબલ હોય. સિમિલરલી બી પોઈન્ટ જે છે એ એક્સ સ્ટેશન એવું નક્કી કરે કે જે એ અને બી ને બંનેને વિઝિબલ હોય. નાઉ ક્લિયર?
ઇન્ટરમીડિયેટ sir. 2 પોઈન્ટ, હા આપણે 2 પોઈન્ટ લેવા પડશે કે એ પોઈન્ટ જે છે એ વ્યક્તિ જે છે એને બંને પોઈન્ટ દેખાવો જોઈએ, એક્સ અને વાય. તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન ઉપર એલિવેશનમાં. એ પોઈન્ટને આપણે એવો પોઈન્ટ સિલેક્ટ કર્યા એક્સ અને વાય, જેથી કરીને એ બંને સાઈડથી દેખાઈ શકે. એ જોશે તો એક્સ એ દેખાશે ને વાય દેખાશે. એવી રીતે બી પોઈન્ટ થી જોશે તો એને એક્સ વાય પણ દેખાશે ને એક્સ પણ દેખાશે. તો પ્રોસિજર શું છે? સિમ્પલ, કે ભાઈ એ અને બી તમારી પાસે છે જ ઓલરેડી બેઝ લાઈન. તો તમે અહીંયા બિલ્ડિંગમાં તમે જોયો તો આપણે એવું પોઈન્ટ નક્કી કરવું પડશે કે અહીંયાથી તમે જોશો અહીંયા એમ એન લીધેલું છે, બરોબર? તો પેલા આપણે એમ છે એટલે મને તમે લઈ લો. તો બી થી એમ છે તો M1 ને M2 પોઝિશન ઉપર એવા પોઝિશન આવવું પડશે કે જેથી કરીને M2, N3 અને એ તને એક લાઈનમાં હોય. દેખાય છે? શરૂઆતથી કરીએ તો N અહીંયા છે, બરોબર? તો એ અને N તો સ્ટ્રેટ લાઈનમાં જ હોવાના. ખ્યાલ આવ્યા? આપણે બી પોઈન્ટ સુધી પહોંચવું છે તો એ પોઈન્ટ અને કોઈ પણ બે વ્યક્તિ અહીંયા ઊભા છે, બરોબર? તો એને તમે સ્ટ્રેટ લાઈનમાં કરી દો. એટલે એ, N2 અને N1 જે છે એક સ્ટ્રેટ લાઈનમાં આવી ગયા. ઓકે, હવે શું કરવાનું કે ભાઈ હવે બી વાળો જોશે. બી વાળો જે છે, બરોબર, એ એમ જે છે થર્ડ પાર્ટી એને એમ કહેશે કે ભાઈ તું M2 પોઝિશન આવી જા, જેથી કરીને બી, M2 અને N2 એક લાઈનમાં આવે. એવી રીતે પ્રોસેસ તમે રિપીટ કરો તો એક એવો પોઈન્ટ આવશે એમ અને એન જે બંને બાજુથી જોઈ શકાશે. તમે જોશો બી થી તમને એમ અને એન દેખાય છે અને એ થી પણ તમને એમ અને એન દેખાય છે, રાઈટ? હવે થોડું ક્લિયર થયું કે નહીં? બીજા કોઈને ના સમજણું હોય એવું? એનીબડી? કૃપાલસિંહ ઝાલા, ખુશી, સમજાણું તમને? Yes, sir. ખ્યાલ? ઓકે, બીજા કોઈને કોઈ ઇશ્યુ છે આમાં સમજવામાં? એનીબડી? ઇઝ ધેટ ક્લિયર? ઝાલા, તમે એક્સપ્લેન કરી શકશો બ્રીફલી? सर अच्छा। सर ये इसमें क्या मतलब, ये हम आप तो बता दिए कि थर्ड पॉइंट लेने के लिए, सेकंड पॉइंट लेने के लिए, फिर इसमें होगा क्या यहाँ पे प्रैक्टिकल के इससे लिए? हम मतलब कि इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या है कि हाँ, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हम चेन सर्वे की मदद से ऑफसेट ले सकते हैं, राइट? है ना? Yes, sir. इस तरह से हम ऑफसेट ले सकते हैं. ए बी है हमारा, तो यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए. ए बी तो है ही. बी से एम एक लाइन हो गई आपकी और एम से ए Yes, लाइन sir. हो गई. ट्रायंगल बन गया. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ट्रायंगल बन गया. उसके हिसाब से आप वहां से ऑफसेट लेना स्टार्ट कर दीजिए और आपका एरिया मिल जाएगा, राइट? Okay. वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आपकी बाउंड्रीज फिक्स करनी है, ठीक है? आप सर्वे करते करते गए सपोज, तो पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन मिली, उसके बाद क्या हुआ कि उस ऑब्स्टेकल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, बाईपास रोड बनाना पड़ेगा. तो ये बाईपास रोड है, आप समझ लीजिए. आपको आगे ही जाना है, यहाँ से ए पॉइंट से आते आते यहाँ पर पहुंचे ए पॉइंट तक, फिर आपको बी पॉइंट तक जाना था, लेकिन यहाँ तो बिल्डिंग है, तो आप कैसे जाएंगे? ऐसे बाईपास करके बी पॉइंट तक चले जाए, वापस से स्ट्रेट लाइन में चले जाए, राइट? समझ में आया? Okay, sir. Yes, sir. બીજા કોઈને ડાઉટ છે? એનીબડી? કૃપાલસિંહ ઝાલા, તમે એક્સપ્લેન કરી શકશો? મેં તમને સિમ્પલ કીધું કે તમારે એને યાદ રાખવાની ટેકનિક આ છે. તમને મેજોરિટી બધા અવેર છો એટલા માટે. જે લોકો અવેર ના હોય ડિસિઝન રિવ્યુ સિસ્ટમથી, તેને અવેર થવું જોઈએ, જેથી કરીને તમને થોડુંક એક્સપ્લેનેશન અને રિયલ વર્લ્ડ સાથે કનેક્શનમાં તમને ખબર પડે. ઓકે, તો સિમ્પલ વસ્તુ છે. તમે ઇમેજમાં ઇમેજિન કરતા જાઓ, તમને ઇઝી પડશે, યાદ રાખવું ઇઝી પડશે. તમે જો અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર, મેં મારો આને આપણે કોપી કરી લઈએ, બરોબર? પેલા તો તમને થોડુંક આઈડિયા આવશે. ઇમેજ કોપી કરી અને આપણે ગયા બ્લેક વ્હાઇટ બોર્ડ તરફ, બરોબર? ફરીથી તમને બ્રીફિંગ આપી દો, બરોબર? એટલે તમને ખ્યાલ આવે. ઇઝી છે, થોડું ગ્રાસ્પિંગ પાવર તમારે વધારવાની જરૂર પડે, બરોબર? ઇફ યુ આર નોટ गेटिंग दिस इन दिस सिंपलर मैनर. ओके, नाउ दिस इज द फिगर. आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे पॉइंट लिखते जाता हूँ कि आपको इस तरह से एक्स और वाई पॉइंट लोकेट करने हैं, ताकि जब ये ए वाला बंदा यहाँ से देखे इस तरफ, तो उनको एक्स पॉइंट भी दिखे और वाई पॉइंट भी दिखे. सिमिलरली बी वाला बंदा जो है
यहां से देखे तो उसको ये y पॉइंट भी दिखे और x पॉइंट भी दिखे, राइट। तो उसके लिए प्लान में आप आ जाइए। तो प्लान में आप क्या करेंगे, आप तो पहले इस तरह से AB लाइन बनाएंगे, राइट। इस तरह से आपने AB लाइन बना दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कोई भी एक लाइन खींच दीजिए जो है किसी भी एंगल पे, इस तरह से आप लाइन बना दीजिए, राइट। अब क्या करना है कि अब पॉइंट इंटरसेक्ट करवा दीजिए, ठीक है। कि इस तरह से एंगल बना दिया आपने, और अब आपको क्या करना है, सिंपल, कि आपको जो यहाँ पे x1 और y1 दो बंदे हैं, ठीक है, उनमें से तीनों को एक ही लाइन में पहले खड़े करना है इस तरह से। तो आप यहाँ पे पॉइंट रख दीजिए। तो ये हो गया, x1 यहाँ पे खड़ा है और y1 यहाँ पे खड़ा है, राइट। अब क्या करेगा, आपको एक इस तरह से लाइन बनानी है ताकि आपको ये y1 इस तरह से शिफ्ट होगा y2 पे, ताकि आपको b y2 एंड x1 एक लाइन में आपको दिखे। ये आ रहा है आपको समझ में अब, ठीक है। और वापस से आप अब जो है x की बारी, a गाइड करेगा तब x मूव करेगा, b गाइड करेगा तब y मूव करेगा, ठीक है। तो वापस से ये x1 जो है वाला बंदा है वो x2 पे इस तरह से आएगा ताकि आपको a x2 और y2 जो है आपको एक ही लाइन में दिखे। मिल गई आपके फिगर। अब आप क्या करेंगे, b की बारी, b क्या करेगा, y2 को गाइड करेगा और लेके आएगा y3 पे, ताकि आपको b y3 और x2 एक ही लाइन में मिले। समझ में आई बात। तो इतना सिंपल है। अब कोई डाउट है किसी को? ये मैंने पूरा फिगर आपको ड्रॉ करके बता दिया। कोई डाउट इसमें? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। ओके, अब कोई डाउट है? दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ इनडायरेक्ट रेंजिंग। ओके, अब कोई डाउट है आपको? इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं ये बता दीजिए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो, यूज यूज कहाँ पे कर सकते हैं? यूज चेन सर्वे में होता है, चेन सर्वे में होता है। मैं आपको वापस से बोलता हूँ, आप समझ नहीं रहे कि आप यहाँ से चेन सर्वे करते करते आए। यहाँ से सपोज आपको 10 किलोमीटर का चेन सर्वे करना है? आप अपना मैक बंद कर दीजिए, ठीक है। आपको 10 किलोमीटर का सर्वे करना है ना, रोड पे, ठीक है। तो आप चलते चलते आए यहाँ पे, है ना, आपने 5 किलोमीटर पास कर दिया, लेकिन जैसे आप 6ठे किलोमीटर पे आते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या कि आपको जिस डायरेक्शन में सर्वे करना था वहां पे तो बिल्डिंग आ गई। तब आप क्या करेंगे, उसको बाईपास करके ऐसे ले जाएंगे और वापस से 7, 8 और 9, तब ये काम आता है, ठीक है। आपको कंडीशन पहले बताई कि ये कहाँ पे यूज होता है। ये सब समझ गए। हाँ, कहाँ पे यूज होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंटर से मैं दिखाता हूँ। स्टेशंस आर नॉट इंटरविजिबल, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे चले जाओ। लेकिन यहाँ से बीच में कोई बिल्डिंग आ गई इस तरह से, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बाईपास करना पड़ेगा। तो बाईपास कैसे करोगे वो आपको दिखाया। ओके, ओके सर। सो हाँ, दैट इज द केस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो है मैं आपको तो इतना सिंपल है, आपको ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब जो है कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल्स किस टाइप के पूछे जाते हैं चेन सर्वे के ऊपर, तो हम प्रैक्टिस करेंगे और तीसरा मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हमारी जो फील्ड पे चेन है वो आयन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो समर में क्या होता है कि वो एक्सपांड हो जाती है, राइट। और विंटर में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रास्ट हो जाती है। वो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर के कारण।
समर सीजन में, और विंटर में वो थोड़ी श्रिंक हो जाएगी, यानी कि छोटी हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास दो वर्ड है, एक तो टू लॉन्ग हो गई, टू शॉर्ट, और दूसरी हो गई टू लॉन्ग। ठीक है, तो अगर चेन की लंबाई आपकी 20 मीटर है, मेट्रिक चेन की, राइट, तो अगर आपकी चेन की लंबाई आपने वापस से ओरिजिनल टेप से मेजर किया तो वो 20.2 मीटर निकली, तो इस चेन को हम क्या बोलेंगे, टू लॉन्ग। ठीक है, और मान लीजिए 19.9 निकली तो उसको क्या बोलेंगे, टू शॉर्ट। ये समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर 20 सेंटीमीटर 20 मीटर की मेट्रिक चेन आप यूज कर रहे हो, तो उससे ज्यादा जो आपको लेंथ मिलती है प्रैक्टिकल करने के बाद, आप लैब में आते हो, उसको मेजर करते हो कि भाई हमने सही से मेजर किया कि नहीं, चेन तो ठीक थी कि नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए आप लैब में से जब गए तब चेन बरोबर थी, लेकिन बीच में क्या हुआ कि आपने पूरा दिन सर्वे वर्क किया, चेन सर्वे, तो उसकी लेंथ जो है कम हो गई या बढ़ गई। ठीक है, आप समर में काम करते होंगे तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ड्यू टू द टेम्परेचर इफेक्ट। तो अगर 20 मीटर की चेन आपकी 20.1 भी होती है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी टू लॉन्ग चेन हो जाएगी, और कम रहती है तो उसके लिए आपको टू शॉर्ट रह जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। अगर आपकी चेन सर्वे करने के बाद आपको लेबोरेटरी में आने के बाद आपने मेजर किया और थोड़ी सी भी लंबाई ज्यादा मिली, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो करेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं, करेक्ट लेंथ मस्ट बी इज इक्वल टू द मेजर्ड लेंथ इनटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। तो एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से याद आएगा, अच्छे से आइडिया आएगा। तो करेक्ट लेंथ क्या है कि मेजर लेंथ इंटू एल डैश अपॉन एल। एल डैश क्या है, वो इनकरेक्ट लेंथ है, और एल क्या है, करेक्ट लेंथ है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप एरिया की बात करें तो आपको सिंपल स्क्वायर कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट एरिया इज इक्वल टू कैलकुलेटेड एरिया, आपने जो कैलकुलेट किया है वो, इनटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, दैट मींस एल डैश अपॉन एल रेस टू स्क्वायर। अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो रेस टू क्यूब। ओके, अब जो एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको आसानी रहे, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको पढ़ के बताता हूं कि आपकी 30 मीटर की चेन है। ठीक है, वो चेन आपने पूरे दिन सर्वे किया और 1360 मीटर जो डिस्टेंस मेजर किया उस चेन की मदद से। तो आपने क्या किया, 30 मीटर की चेन की मदद से आपने पूरा दिन सर्वे किया, और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चला कि हमने 1360 मीटर का सर्वे किया। तो दैट इज योर कैलकुलेटेड और मेजर लेंथ। ओके, सो 1360 इज योर मेजर लेंथ। अब कंडीशन क्या हो गई कि ए 30 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। ठीक है, तो आपने ये पूरा दिन सर्वे किया, उसके बाद 10 सेंटीमीटर आपको लंबाई ज्यादा मिली चेन की। ठीक है, तो अब जो है आप फाइंड द ट्रू डिस्टेंस कीजिए। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये आप समझ लीजिए। तो हमारा केस क्या है कि करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन क्या है, यानी कि एल क्या है, 30 मीटर, राइट, और इनकरेक्ट लेंथ दैट इज योर एल डैश। तो एल डैश क्या है, आपकी 30 मीटर तो थी ही, लेकिन वो लंबी हो गई तो उसमें आपको 10 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 0.1 आएगा। तो आपकी इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन हो जाएगी एल डैश, यानी कि 30.1 मीटर, राइट। और आपने मेजर कितना किया, 1360 मीटर। तो आपका ट्रू डिस्टेंस क्या होगा, दैट मीन्स मेजर डिस्टेंस 1360 इंटू इनकरेक्ट लेंथ दैट इज योर एल डैश, और सिंपल एल 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 1364 मीटर। ये बात आपको समझ में आई एग्जाम्पल? इसमें कोई डाउट है? मैं आपको बोर्ड की तरफ ले जाता हूं ताकि आपको आसानी रहे। हमारा फॉर्मूला आपको एक याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है कि हमारी ट्रू लेंथ यानी कि टी एल इज इक्वल टू एम एल, ओके, इनटू एल डैश अपॉन एल। तो हमारे केस में हमें क्या, मेजर लेंथ हमारी कितनी थी, एम एल 1360, राइट,
एल एल कितनी है 30 मीटर, वो आपको दिया हुआ था 30 मीटर। एल डैश कितनी है, और 10 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि 30 प्लस 0.1 मीटर, तो वो आ गया आपका 30.1 सेंटीमीटर 1 मीटर। बाद में क्या करना है, सिंपल आपको 1360 इंटू एल डैश कितनी है 30.1 डिवाइड बाई 30, उसका आप कैलकुलेट कर दीजिए और मीटर में आंसर आ जाएगा, राइट। सो दैट इज द केस। अब जो है मान लीजिए एरिया की बात करें, दिस इज द ट्रू लेंथ, ओके। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टी एल यानी कि ट्रू लेंथ इज इक्वल टू एम एल मेजर लेंथ इंटू ब्रैकेट एल अपॉन एल डैश अपॉन एल रेस टू 1, तो वो हो गया आपकी लेंथ, ओके। फिर ट्रू एरिया की बात करें, यानी कि टी ए इज इक्वल टू एम ए मेजर्ड एरिया इंटू एल डैश अपॉन एल होल स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा एरिया, राइट राइट। अब वॉल्यूम की बात करें तो ट्रू वॉल्यूम इज इक्वल टू टीवी इज इक्वल टू एम वी इंटू एल डैश अपॉन एल रेस टू 3, तो 1 2 3 ऐसे आपको याद रख सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा वॉल्यूम मीटर क्यूब में, राइट। तो 1 2 और 3 इस तरह से याद रख लीजिए, बाकी तो सेम ही है। मेजर लेंथ है तो 1 आएगा, एरिया है तो 2 आएगा, और वॉल्यूम है तो 3 आएगा। अब जो एक एग्जांपल हम करते हैं, अब ये आपके सामने एग्जांपल है, राइट। तो इसका जरा आप फाइंड कीजिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूं और अपना आंसर जो है मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ए 20 मीटर चेन, यानी कि लंबाई जो एल है करेक्ट लेंथ वो आपकी हो जाएगी एल इज इक्वल टू 20 मीटर, वॉज फाउंड टू बी 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, यानी कि आप प्रैक्टिकल करके आए तब आपके चेन की लंबाई कितनी हो गई, टू लॉन्ग 6 सेंटीमीटर बढ़ गई, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डेज वर्क आफ्टर मेजरिंग 6000 मीटर, आपने 6000 मीटर का यानी कि 6 किलोमीटर का चेन सर्वे किया, तो उसमें आपको काम के अंत में आपको पता चला कि आपकी चेन जो है वो टेम्परेचर की वजह से या ज्यादा खिंचाई की वजह से वो लंबी हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो टू लॉन्ग हो गई। तो अब क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है कि इफ द चेन वाज करेक्ट, जब आप लैब से निकले थे तब आपकी चेन की लंबाई परफेक्ट थी 20 मीटर थी, लेकिन काम के दौरान कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर लंबी हो गई। तो द इफ द चेन वाज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क, यानी कि आपका काम स्टार्ट करने से पहले आपकी लंबाई जो थी वो 20 मीटर ही थी, ठीक है। चेन की लंबाई जो थी वो 20 मीटर ही थी, लेकिन जैसे आपका काम खत्म हुआ 6 किलोमीटर नाप के आप आ गए, तो आपकी करेक्ट आपकी चेन जो थी वो 6 सेंटीमीटर लंबी हो गई। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड द करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। जैसे आपको आंसर मिलता है कैलकुलेटर का यूज कीजिए और वो मुझे लिख के भेजिए। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, ओके। 6180 6180 सभी का आंसर आ रहा है, राइट, ऐसा लगता है। Okay, so majority of you are getting 6180 meter. But
Here you can see the if I am showing you the answer, majority of you have completed. By Rajkumar Vaishnav છે, કુંજ છે, કુલદીપ દાદલ, ખંજન પરમાર છે, આટલા લોકો નથી ને કોઈ? Okay. So here my dear friends, you need to observe one thing. जब आप पहले एग्जाम्पल में गए थे तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, इफ वाला स्टेटमेंट नहीं था, यहाँ पे बताया नहीं गया है कि आपकी चेन पहले से ही करेक्ट थी या नहीं। ठीक है, तो आपको सिंपल करना होगा। यहाँ पे बताया नहीं गया तो आपने क्या किया, सिंपल प्लस 0.1 करके आपने ऐड कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे कंडीशन है कि आपको मालूम है कि आपके चेन जब आप काम करने से पहले लेबोरेटरी में आपने चेक की थी और चेक करने के बाद आपको पता चला कि हमारी चेन की लंबाई जो है वो परफेक्ट है काम शुरू होने से पहले। पहले वाले एग्जाम्पल में हमें नहीं पता था क्योंकि हमने चेक ही नहीं किया था। तो जब आप चेक नहीं करते हो तब आपको पूरी की पूरी जो ऐड करनी है, अदरवाइज जब आप चेक करते हो तब आप उसको एवरेज कंसीडर करनी है। तो आपके सामने ये एग्जांपल का सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो। तो a 20 meter chain was found to be 6 centimeter too long at the end of the day's work after measuring 6000 meter. If this is the condition, if the chain was correct before the commencement of the work, find the correct length of the line. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत है कि हमने पहले मेजर किया था, वो परफेक्ट थी 20 मीटर। ओके, तो अब उसको ग्रेजुअली लेना, यानी कि उसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए एल डैश क्या हो जाएगा, इट विल नॉट लाइक दैट 20.06, it will be the average. So the mean correct length, that is your L dash would be 20 प्लस आपकी 6 सेंटीमीटर की जो लंबाई थी वो उसकी एवरेज लेनी पड़ेगी। तो 20 प्लस 20.06 डिवाइड बाई 2, तो आपका जो आंसर है वो 6018 आ रहा है, वो आपका गलत आंसर है। आपका आंसर होगा 6009। अब आई बात समझ में? दो चीज याद रखनी है, जब आप चेक करके निकलते हो लेबोरेटरी में से और आपको मालूम है कि हमारी चेन की लंबाई जो थी वो परफेक्ट थी, तब आपको एवरेज लेनी है इस तरह से। ठीक है, यानी कि 6 सेंटीमीटर का आपका 3 सेंटीमीटर करना है। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं है कि चेन हमारी नापी गई थी नहीं, तब आपको सिंपल लेना है ग्रॉस कंडीशन, दैट इज एज इट इज आपको लेना है 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, अदरवाइज आपको उसको हाफ करना है। तो आ गई बात, कोई डाउट? राइट, अब ये वाला एग्जांपल कीजिए, हमारे पास 2 मिनट है और इसको ट्राई कीजिए। जरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप दोनों कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, a 30 meter chain was found to be 6 centimeter too long after chaining a distance of 4000 meter. ठीक है, it was tested again at the end of the work and it is found that 8 centimeter long after chaining of 7800 मीटर। तो हमने दो पार्ट्स बनाए कि पहले हमने क्या किया, बीच में एक बार और चेक कर लिया कि पहले आप 30 मीटर चेन लेके निकले थे लेबोरेटरी में से, और यहाँ पे कंडीशन भी है, इफ द चेन वाज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क, यानी कि आपको मालूम है कि जब आप लैब से निकले थे तब आपकी चेन की लंबाई एग्जैक्ट 30 मीटर थी। फिर क्या किया हमने कि हमने 4000 मीटर पे यानी कि 4 किलोमीटर पे हमने एक चेक लगवाया कि आप चेक कीजिए यहाँ पे अब कितनी है, तो तब 6 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। ओके फाइन, हमें यह बीच में पता चला कि 6 सेंटीमीटर लंबी थी। उसके बाद काम जैसे खत्म हुआ उसके बाद हमने वापस से मेजर किया तो वो 8 सेंटीमीटर लंबी निकली। राइट, तो हमारा टोटल डिस्टेंस 7800 है। तो अब आप मुझे बताइए कि टू लेंथ क्या हुई, टू डिस्टेंस क्या हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो मैं आपको एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, तो टू डिस्टेंस तो 2 मीटर 2 cm होगा ना?
आप अपने हिसाब से बनाइए तो सही, फिर मैं आपको एक सॉल्यूशन दिखाऊंगा। अगर किसी को आंसर आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। सर स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं 7809 मीटर। ओके पाथ। ओके, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ कि बोर्ड पे हम जाते हैं। बोर्ड कहाँ गया, यहाँ पे। ओके, तो इसको हम दो भाग में इसे डिवाइड करेंगे। आपको ये स्केल दिख रही है, ठीक है। तो अब जो ये हमारी चेन की पूरी लंबाई है, राइट, और वो कितनी है, टोटल डिस्टेंस 7800 मीटर। तो आप अपना एंडोमेंट नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। वी विल स्ट्रेच दिस लेक्चर 5 मिनट्स। हमारी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, 7800 मीटर, राइट। सो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 7800 मीटर। ये हमारा पूरा काम है, ठीक है। और हमने एक 4000 मीटर पे, यानी कि इस पॉइंट पे मान लीजिए ये, तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट सी पे हमने क्रॉस चेक करने के लिए सिर्फ हमने मेजर करवाई लेंथ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4000 मीटर हो गया। एसी एसी हो गया 4000 मीटर। तो अब बाकी कितना बता, सी बी डिस्टेंस कितना होगा, -7800 -4000, दैट इज योर 3800 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब हम यहाँ पे, आप हल्का सा पैसा बना सकते हैं, ठीक है, कि जब हम लैब से निकले थे, ऐसा ग्राफ बना दीजिए तब आपको आसानी रहेगी। जब हम लैब से निकले थे तब हमारे पास चेन एग्जिट थी 20 मीटर, यू कैन से, राइट। तब हमारे पास कितनी लंबाई थी, 20 मीटर। दैट मीन्स जीरो एरर, ठीक है। फिर आप एग्जांपल में देखिए, 4000 मीटर के बाद आपकी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर का इस तरह से आप बना सकते हैं, ये आपको आसानी के लिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का आप इस तरह से एक ग्राफ बना लीजिए, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे थी 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, ओके, टू लॉन्ग, राइट। फिर एट द एंड आपको कितनी मिली, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप ग्राफ में ऐड कर दीजिए 8 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा ही होगा, राइट। तो आपने यहाँ पे लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। तो अब क्या होता है कि आपका ट्रू लेंथ दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें एवरेज करके ऐड करनी होती है कोई भी चीज सर्विंग में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इस तरह से पहले लाइन बनाता हूँ, फिर इस दोनों पॉइंट को जोड़ दूंगा इस तरह से, ताकि आपको एरर पता चले, राइट। तब आपके ये
सिर्फ याद रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे लिए एल डैश कितनी हो जाएगी फर्स्ट पार्ट के लिए, इसका और इसका एवरेज, तो एल डैश हो जाएगा 0 + 6 डिवाइड बाय 2, that is 3, that is 20.03. L dash will be 20.03, right? फिर आपके लिए मेजर लेंथ 4000 हो जाएगी, उसका अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आएंगे तो L dash 2 कितना होगा, 6 + 8 डिवाइड बाय 2, so that will be 7, राइट। तो अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में देता हूँ, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप जा सकते हैं। सो हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आपको क्या करना है कि 4000 मीटर है, उसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया, तो फर्स्ट पार्ट विल बी द एल डैश विल बी 30 + 30.06 डिवाइड बाय 2, दैट इज 30.03 मीटर। जैसे मैंने आपको यहाँ इमेज में बताया, इसका एवरेज होगा 0 और 6 का एवरेज होगा, तो हो गया 20.03 फॉर फर्स्ट पार्ट। फिर आपकी मेजर लेंथ के हिसाब से आपने 4004 मिला, राइट। उसके बाद आपका बचा कितना, 2380 मीटर। फॉर 3800 मीटर यू कैन कंसिडर 6 + 8 डिवाइड बाय 2, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का एवरेज होगा, और वो बन जाएगा 30.07 मीटर। ओके, तो आपका डिस्टेंस हो गया 3800 इंटू 30.07 डिवाइड बाय 30, तो आपका आंसर आ गया 3808.9 मीटर। और इस 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा हम जल्दी में गए, इसको हम आगे लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस क्या करना है, ये तीनों एग्जाम्पल आपके ई कंटेंट में अवेलेबल है। आपको सिंपल करना है कि टू लॉन्ग की जगह टू शॉर्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे जहां जहां टू लॉन्ग लिखा है वहां पे आपको करना है टू शॉर्ट, और कैलकुलेट करके लाना है। तीनों एग्जाम्पल आपको कैलकुलेट करके लाना है, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आज मुझे 4 बजे से पहले भेज देना है, राइट। ये तीनों एग्जाम्पल रिवाइज वाले, प्रैक्टिस वाले, आपके लिए रेफरेंस के लिए यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल, तो जहां जहां आपको टू लॉन्ग लिखा है वहां वहां आपको टू शॉर्ट लिख के आपको एग्जाम्पल गिनना है, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो, ठीक है। सो दैट इज द केस। और लास्ट में कुछ एमसीक्यू थे, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब तक जो है आपको ये प्रैक्टिस एग्जाम्पल मुझे सभी को भेजना है, और अभी तक आपने रोल नंबर नहीं लिखा है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और आप जा सकते हैं अगर आपको डाउट नहीं है तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ સર તમે પ્લીઝ આ પીપીટી પોર્ટલમાં એકવાર પાછી અપલોડ કરશો, મારામાં નથી બતાડતું. नहीं, पाछी करवानी जरूर नहीं, ऑलरेडी है ત્યાં, यू कैन चेक इट आउट देयर। रिफ्रेश करो, ऑलरेडी ત્યાં છે, અને પછી ના મળે તો મને કહેજો, મે બી એપ્લિકેશન રીઇન્સ્ટોલ કરી દો, બાકી ઓલરેडी છે ત્યાં। ઓકે ઓકે સર, થેન્ક યુ. ઓકે, so if you don't have any kind of query you can leave the meeting. Okay, ખુશી કઈ query છે? ઓકે, અનુજ?